member of the Delhi Medical Council and in representing Delhi in National Medical Commission. So this Delhi Medical Forum is a public health organization. We have been regularly raising issues of which are important for the public health at various forums. Just on last 12th, we launched the Mask Lagao Corona Bhagao program, and which is running all over Delhi. This is another last 2 days especially. We saw that people of Delhi are already struggling. People of Delhi are already struggling with the COVID emergency, with the COVID pandemic, and the cases are surging in the last 4-5 days, or attaining new heights. And on top of it, just 2 days back, we have seen that all air quality indices, they are rising, and the pollution level again in Delhi has gone to very alarming levels. So we thought it is our prime duty to have an awareness about what is the problem, where is the responsibility of the government, which a specialist organization can suggest, and what are the precautions a public should take to be out of this menace. Otherwise, we can say it's a double attack in Delhi. We have I have with me Dr. B.V. Wadhwa, very senior family physician, and he is currently the president of Delhi Medical Association. I have Dr. Abhinav Banod, a very young pulmonologist who has been dealing with a very severely critically ill COVID patients for the last 6 months. We have Dr. Rahul Sharma, and Dr. Abhinav is a consultant at Redix Healthcare and is practicing in East Delhi. Dr. Rahul Sharma is one of the few people who have got their DM degree in pulmonology. That is a doctorate, is the highest degree in chest specialization from Safdarjung Hospital, and he is right now HOD of the League Liste at Pulmonology and Critical Care. We are just awaiting Dr. Arvind Kumar, who is the head of the surgery, chest surgery at Sir Gangaram. At the very outset, I will request Dr. B.V. Wadhwa, who is a very senior physician practicing in East Delhi and seeing patients with COVID, with pollution and all such a problem for last 40 years, and is also the president of our prestigious Delhi Medical Association, to please come and share his views. On today's very important meeting with press, आज हमारा विषय है दम घोटू दिल्ली की हवा। इस हवा में अब दम घुटने लगा है। पहले तो कोरोना की मार से पहले जो त्रसित थे, और अब दिल्ली की जो हवा है वो जीने लायक है। एज ए डॉक्टर मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। पिछले 35 साल से प्रैक्टिस करता हूँ इस दिल्ली में, एंड आई एम सीइंग मोर देन 100 पेशेंट पर डे। लेकिन हमारा दिल्ली मेडिकल फोरम जो एक समाजसेवी संस्था है, पिछले काफी समय से हम लोगों को जागरूक करते रहे हैं, आपके माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते रहे हैं। आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से दिल्ली का वासी जिएगा, कैसे वो अपनी आगे की लाइफ को काटेगा, किस तरह से इससे निपटेगा, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे पेशेंट फेस कर रहे हैं, क्या उनको बीमारियां इस प्रदूषण से हो रही हैं, और किस तरह से उसका बचाव किया जा सकता है। सरकार की जवाबदेही इस पे कितनी है, पब्लिक की जवाबदेही कितनी है, और अथॉरिटी जो है वो किस तरह से इसको देखती हैं, और किस तरह से जो है आगे आने वाले समय में हमें इसका सामना करना है। आज हम इस विषय में आपसे वार्तालाप करेंगे। मैं समझता हूँ हमें इंटरेक्शन आपस में करना है। हमारे साथ में बड़े मेधावी
पल्मोनोलॉजिस्ट आपके बीच में बैठे हैं जो कि दिन रात पहले कोविड का केसेस को देख रहे थे और साथ ही साथ जो दूसरी मार हमारे ऊपर पड़ी है पर्यावरण की वजह से उसके पेशेंट्स देख रहे हैं। तो हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे और एक हम चाहेंगे कि एक मैसेज जाए, सरकार को भी जाए कि उसको किस तरह से देखना है, क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, क्यों वह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रही है और समाज किस तरह से इस प्रॉब्लम से फेस करेगा। तो आज हम इसके लिए इकट्ठे हुए हैं। आपका फिर एक बार फिर स्वागत है। हम दिल्ली मेडिकल फोरम की इस संस्था के माध्यम से ये मैसेज सारे समाज में पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो समस्या है इसके बारे में हमें सीरियस होना है और इसके बारे में हमें ध्यान देना है। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक बात है। हार्वर्ड में एक स्टडी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि जब PM 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, जब वो 1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अगर बढ़ जाता है तो कोविड की वजह से जो जाने जाती हैं उनका रेट 15% ऊपर हो गया। सो एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टडी है ये बताते हुए कि कोविड-19 और जो ये पार्टिकुलर मैटर है ये दोनों कनेक्टेड हैं। जैसे भी सर ने जैसे बताया कि पहले सर्ज हुआ फिर बीच में ठीक हो गया था और जैसे ये पोल्यूशन बढ़ने लगा, ठंड बढ़ने लगी, जो पोल्यूटेंट्स हैं पार्टिकुलेट मैटर है वो सेटल करने लगे, तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये कोविड-19 के लिए एक वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं ये पार्टिकुलेट मैटर और कोविड-19 दोनों फेफड़े के थ्रू खून की वेसल्स, खून की नलियों में जाके वहां पे डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो जितने भी मरीज जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है पहले से, उनके अटैक्स, उनकी डेथ्स ये सब बढ़ने लग गई हैं। आपने देखा है 6000 से ऊपर केसेस बढ़ चुके हैं और अस्पताल में बेड फिर से मिलने मुश्किल हो गए हैं। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ पोल्यूशन की वजह से ही है। ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे ये सारा पोल्यूशन का लेवल इस एमिशन से डिक्रीज हो सके। दूसरा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्ट्रिक्टर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करवाएं। जैसे सर ने मास्क लगाओ कोरोना भगाओ अभियान शुरू किया था, वैसे ही मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट इसको एक लार्ज स्केल पे इनिशिएट करे और प्रिवेंट करे ये जो दिक्कतें हमारे को कोरोना से हो रही। कोविड के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कंट्रोल के। एक जो हम सब ने ये पहना हुआ है मास्क। पूरे वर्ल्ड में न्यूमरस स्टडीज हैव प्रूव्ड कि कोविड को रोकने का ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। अगर आपने मास्क लगाया हुआ है, दूसरे ने मास्क लगाया हुआ है, अगर आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट के बगल से भी गुजर जाएंगे तो आपका एक्सपोजर लेवल बहुत लो होगा और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन नेग्लिजिबल होंगे। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बहुत महीने हो गए हैं और लोग कुछ थक से रहे हैं तो बहुत लोगों ने इसको लापरवाही शुरू कर दी है। ये एक चीज है जो आप हाईलाइट करें कि लोग मनाएं, और खासकर से जब फेस्टिवल होते हैं उस समय तो लोग वैसे ही खुशी में मिल करके ऐसे मास्क कर लेते हैं, उससे सबको नुकसान। दूसरा चीज जो बहुत इफेक्टिव है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। अगेन बहुत सारी स्टडीज ने प्रूव किया है कि अगर आप 1.5-2 मीटर का डिस्टेंस रखें, मान लीजिए मैं पॉजिटिव हूं, मैंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ है और मैं बोल रहा हूं, इस समय मेरे मुंह से एरोसॉल निकल रहा है जो 1-1.5 मीटर की दूरी तक जाता है। अगर आपने भी मास्क नहीं लगाया है और आप उस 1-1.5 मीटर की दूरी के अंदर खड़े हैं तो मेरा एरोसॉल बाहर आया, आपने सांस ली, वो एरोसॉल अंदर गया। अगर हमारा कांटेक्ट 10 मिनट से 15 मिनट से ऊपर हो गया, आपके बॉडी के अंदर एनफ वायरस लोड पहुंच गया जिससे आप इफेक्ट हो जाएंगे। अब सिचुएशन देखिए, मैंने मास्क लगाया हुआ है, एक अच्छा सा मास्क मैंने अगर लगाया हुआ है, अब मैं बोल रहा हूं तो मेरा अगर ये मास्क प्रॉपर्ली फिटिंग है, मैं इसको प्रॉपर्ली फिटिंग कर लूं, इसका एक्चुअली आपके कभी ऊपर वाला स्ट्रैप टूट गया, तो अगर ये मास्क प्रॉपर्ली फिटिंग है यानी कि ये नोज पे क्लिप किया हुआ है, साइड से भी बंद है, अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं मेरा जो एरोसॉल जो पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर घुस रहे हैं ना। N95 अगर है तो 99% पार्टिकल्स इसके अंदर घुस गए। अब जो 1.5 मीटर में एरोसॉल गया उसमें वायरस की मात्रा बहुत कम है। अब मान लीजिए आप सामने खड़े हैं, आपने भी मास्क लगाया हुआ है, अब वो थोड़े बहुत वायरस जो आप तक पहुंच भी गए वो भी उसमें रुक जाएंगे। मेरे मास्क के अंदर की सरफेस पे होंगे, आपके मास्क की बाहर की सरफेस पे वायरस हो जाएगा, आपके बॉडी के अंदर डोज नहीं पहुंचेगी और क्रॉस इन्फेक्शन एकदम से कम हो जाएगा।
तो मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, और तीसरा हैंड हाइजीन। मान लीजिए मैंने यहाँ हाथ रखा, इससे पहले कोई आके यहाँ हाथ किया था, उसका एरोसोल यहाँ था, मेरे हाथ में आया, मैंने यहाँ नाक लगाया, वो नाक के अंदर चला गया। लेकिन मैं जेब में मान लीजिए रख के घूम रहा हूँ, मैंने फौरन अपने हाथ वॉश कर लिए। हर सरफेस को मैंने इसका बहुत सिंपल सा बार-बार प्रेस में बोला है, हर व्यक्ति को इन्फेक्टेड माने, हर सरफेस को इन्फेक्टेड माने। किसी से भी मैंने आप ये प्रिज्यूम करिए कि मैं पॉजिटिव हूं, आप सब मुझसे 1.5 से 2 मीटर का दूरी रखिए और मुझे मास्क लगाने के लिए इंसिस्ट करिए, आप मास्क लगाइए, कोई भी सरफेस टच करने पे ये करिए। जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक कोई स्पेसिफिक दवा नहीं आती, तब तक पूरे वर्ल्ड में कोरोना को रोकने के यही 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स थे और आगे भी रहेंगे। ये हमें आने वाले समय में भी प्रैक्टिस करने हैं, और जहां जहां इसका वायलेशन हुआ है वहां वहां कोरोना केसेस बढ़ेगी। तो पोल्यूशन 2 सोर्सेस से आता है, एक पार्टिकल्स जो धूल से रिलेटेड है, और दूसरा स्मोक जो धुएं से रिलेटेड है, धूल और धूल। अगर हर गली में चौकीदार लोग रात को लकड़ियां सुलगा के बैठते हैं, उससे काफी मात्रा में धुआं निकलता है। रोज सुबह हमारे गली के जो स्वीपर्स होते हैं वो सारा कूड़ा इकट्ठा करके, आप लोगों ने बहुत बार इस चीज को हाईलाइट किया है, मैं आभारी हूं कि आपने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी हमारी ये प्रैक्टिस चल रही है। ये जो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन है ना, अगर इन्हीं को हम कम कर दें तो उससे काफी हद तक हो जाएगा। मैडम आपने स्मॉग टॉवर की बात की थी, मैं बताना चाहूंगा कि एयर पोल्यूशन का सॉल्यूशन गंदी हवा को साफ होना नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको लाउडली मेरे नाम से कोट कर दें। Solution to problem of air pollution cannot be cleaning of dirty air. It can only be not letting air get dirty. आप इमेजिन करिए सर, प्लीज मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, मैं बहुत पैशनेट हूं इस चीज के बारे में। इमेजिन करिए इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में एयर का वॉल्यूम कितना है, आप कहां से पूरे कंट्री की हवा साफ करने के लिए इतनी टॉवर्स लगा देंगे, जो सारी की सारी टॉवर्स उसको, आप इमेजिन करिए कितने मैसिव लाखों करोड़ों की संख्या में आपको पंप। आफ्टर स्मॉग टॉवर क्या होती है, स्मॉग टॉवर में बेसिकली फिल्टर्स लगे होते हैं और नीचे बड़े बड़े फैन लगे होते हैं। वो फैन हवा को इधर की तरफ करते हैं तो ऊपर से हवा सक होती है, फिल्टर से पास होती है और नीचे से साफ हवा चली जाती है। इट्स लाइक एयर प्यूरिफायर। इट्स एक्चुअली अ लार्जर वर्जन ऑफ एयर प्यूरिफायर। फिजिक्स का गर्म चीज ऊपर जाती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, तो नॉर्मली जो एग्जॉस्ट निकलता है वो ऊपर चला जाता है। लेकिन अभी आपने ऊपर एक नमी की लेयर लगा दी तो वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, वो उस लेयर के नीचे ट्रैप हो रहा है। ट्रैप होने की वजह से उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है कि परसों करवा चौथ की रात को मेरी वाइफ को 1 घंटा एक्स्ट्रा फास्ट करना पड़ा क्योंकि चंद्रमा ही नहीं दिखाई।